and thank you so much, guys, for tuning in for another episode of Financially Laddering Up. And we have a special guest tonight. A quick, background of Praveen. So he's a founder of Stock Market Scientist. He's a trader, investor, trading coach, as well as a mentor. He has got years of experience in understanding the market psychology and technical analysis. Praveen, welcome to the show. Yeah, thank you, Vivek. Okay. So the first question, I think, which I would love to know about your story. I mean, I have been following your work, on Twitter and other platform for a while. But I think, it's better if you can throw some light about, your ups and downs and the journey so far. So Vivek, so first of all, thank you, Class Plus, for having me on this show. And so Yeah. about my journey, I guess I have started my journey in 2013, right? So during my initial 2 years, right, I was mostly into investing, right? And in those years, I used to research about the stocks. I used to research about the what company is doing, what sector is doing, right? And later, I took the interest in technicals as well, right? So my actual Techno Funda journey started in 2015. Right, so from 2015, if I talk about my journey, you know, it is something which is very exciting because one of my friend influenced me ki you have a very good understanding of fundamentals, but you should look at the technicals. Then I asked him uh, what is the technical analysis and what is the use of that. Then he has uh, he had that kind of mentality, or he had shown me the way what you can do with the blend of techno funda. And one thing I would like to add, and I am sure most of the people would be aware of that, is the psychology. So I blended techno funda and psychology. In my study, and 2015 was the year in which I have learned technical analysis with a blend of psychology. Right, specifically the entry, exit, and the sectoral approach. And since then, I have been following the same approach, and it is yielding the result. And I would say very good result for me. And as you know, I've been there, or I've been following the same strategy from last, let's say, 6 years, and it's quite helpful for me. Techno funda with psychology. So this is my journey, and if I talk about my ups and down, I would say 2016, 17, 18. So these 3 years were very good for me. 18, 19, there were bit challenges, right? But Mhm. 2000. Hello. Yeah, please continue. 2020 onwards, there were many catalysts. There were few downs when we had that COVID and all, and then uske baad to I would say ki ups and ups, right? Because psychologically you have to be very strong, and I always incorporated that thing in my learning or in my experience. Ki you have to be psychologically very strong to go through any experience, right? So I would say ki it's an exciting journey with lot of ups rather than lot of downs. Right? Initially, I had a lot of downs till 2015, but uske baad I have not seen much downs. Right? Specifically in terms of challenges. Portfolio में ठीक है. There were a few downs during 18 downfall or 19 downfall or even Corona drawdown, but allocation was such a like कि I have not feel that kind of mental pressure, right? And I would be happy to share my experience or my approach going forward in the space, what I've learned and how I've used that learning and how I've been doing that thing, right? So I'm sure it will be helpful for all of you. Over to Absolutely. Vivek.
Absolutely, Praveen. Guys, just one quick request. We'll be having a Q&A round after the podcast. So I'm getting few requests. I'm sure, a few of you want to talk with, Praveen. So you'll be getting a chance. And one more quick announcement. We are coming up with a special surprise for those of you who don't know. And this gift from Praveenji will be only available to all the podcast attendees who are staying with us till the end. तो अगर आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे सो डेफिनेटली along with the massive value that we are getting right now you'll be getting a special gift. So on that note guys अपने जो questions है you can hold it for now and we'll be having a a specific Q&A round for that. Or okay, so Praveen, two things that I observed in your journey so far. First thing you mentioned about, and we'll be talking about both in detail. I mean, I have a specific question for that. First thing you talk about your approach. So हाँ, सबके पास एक different approach होता है while they're trading in the market. So you mentioned about your Techno Funda approach. So if you can elaborate on that. Yeah, sure, Vivek. So Techno Funda with a blend of psychology is a kind of approach which I would say is a need of the hour, or it is something matlab it is something which should be followed by most of the people. Why? Because whatever you read on fundamentals, right? So technical analysis, or you can say technical of that particular stock, helps you to validate that thing whether you are fundamentally right or not. So for an example, if you are studying any particular stock and that stock is undervalued, right? So you can see that stock on chart as well, right? कि उसमें वो undervalued दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, means वो oversold है कि नहीं है. For an example, so let's say OMC companies, right? All marketing companies are pretty much undervalued. So if you see the chart of those companies, or the companies are pretty much oversold, or you can say are looking very weak on charts, on weekly charts, right? But fundamentally, they have nothing to lose. So people are negative, और आप ये कह सकते हो कि वहां पे ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं, या कह सकते हैं कि they don't have any particular bullish view, right? And chart पे भी people are like कि मतलब what charts are saying कि weekly में oversold है, monthly में oversold है. It means this is the time to buy those companies, and because downside is very limited. Fundamentals are saying undervalued. What charts are saying? Oversold, right? Or you can say no interest. So this is the typical techno funda as well as psychological blend. Psychologically, what you are understanding, fundamentally there is nothing to lose much. इतना गिर गए, इतना down है, और इतना कुछ होने के बाद भी. Plus technically they are oversold, or you can say there is no traction. They are in a range. What it means? Interest people का बहुत कम है. So these companies are very good for medium to long term as of today. So this way you can use, and I'm sure I'll share more examples how you can adopt this approach, Techno Funda way, going forward. So this way I believe this is a typical balance approach which most of the people should adopt. Well, this is my personal opinion, right? Rather than without any bias. So I've been using this approach since 2015, or you can say 2016. Precisely, I'm saying, and this is something which is helping me to grow my portfolio, right? So number one example is when fundamentally companies undervalued, charts are at oversold levels. Number two is company is doing good, but what charts are saying? Charts are also saying that there is a breakout, right? Psychologically, you need to check whether that breakout is real or not, with the help of volume or not. So that we're going to discuss probably in the later part of this space. So techno funda plus uh, psychologically, or you can say uh, techno funda with a blend of psychology is something which you need to use in the market, because technically बहुत सारे लोग strong होते हैं, fundamentally बहुत सारे लोग strong होते हैं, but psychology is something जहाँ पे I believe still बहुत सारे लोग strong नहीं है. बहुत सारे भी मतलब
precisely I'm saying 95% से ज़्यादा लोग strong नहीं हो पाते हैं after a particular stage, right? So this approach need to be adopted. Or to Vivek. Understood. So now I think, if our audience is active enough, I mean, what I'm understanding, the reason why you have seen ups and ups only after 2015, क्योंकि you have a full proven method of using technology fundamentals along with the market psychology, which definitely I'm more interested about the psychology part, जो कि I'll be asking you in this podcast. Okay, so Praveen, my next question is about the performing sectors. I mean, I know 2022 has been has been seeing a lots of ups and downs, but according to you, if you can tell our audience that which sector has performed best this year. So I believe, so Vivek, I guess defense has done very well for us, and sugar has done very well for us, right? Followed by railway. So railway is something which was very close to our heart during August and September, and this was something which we discussed and I have openly shared as well in many platforms. This is a theme which is need of the hour, basis the infra story, or you can say the kind of growth. It is something, it is going to happen. You can't stop it. Railway is something which is a big topic where you need to change the entire. If you look at the rack and all, whether it is that cargo rack or that commercial, passenger train rack, right? Number one. Number two, if you, I'm sure if you would have heard about the budget, right? So in that budget, government had announced 150 plus that train 18, or you can say Vande Bharat trains, right? So to run 150 plus trains on track, you have to upgrade the entire infra. You have to, first of all, you have to build, you have to manufacture those trains or the backends of those trains. Second, you have to update the entire infra of those routes. पटरी से लेकर आपको बहुत सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगे, सिग्नलिंग सिस्टम, बहुत सारी चीजें. तो मतलब इससे कंप्लीट चेंज इन द वैल्यू सिस्टम और वैल्यू चेन ऑफ दिस सेगमेंट, राइट? उस वैल्यू चेन में जितने भी कंपनीज आएंगी रेलवे की, उस सबको बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और अनप्रेसिडेंटेड इन नेचर हो सकते हैं कुछ कंपनीज के लिए. पता लगा कोई कंपनी जो है आपको 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है और उसको ऑर्डर 1000 करोड़ के, 1500 करोड़ के ऑर्डर आ रहे हैं, राइट? सो इट्स अ बिग चेंज बेसिस द रिक्वायरमेंट. तो वो सब प्ले करे. So these are the three areas where we have made most of our money in trading as well as investing. उसके अलावा भी बीच में सेक्टर आते रहे. ट्रेडिंग के बहुत सारे सेक्टर्स थे, ट्रेड किए वो सारे, वो चलते रहे. तो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी गुड ईयर, राइट? सेक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ, डिफेंस, रेलवे एंड शुगर. Yes, Vivek. Okay, great. My next question, I think, will interest most of our audience. बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि किस स्टॉक को पिक करें. Now you have told how to identify the sector. अब इन sectors में प्रवीण, which stocks are the right one to pick? How can we understand that? If you can throw some light on that. कि मतलब how to select the stock, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, बिल्कुल. हाँ, तो सेलेक्ट, देखो, स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, आई ऑलवेज से कि यू नीड टू सेलेक्ट द सेगमेंट और सेक्टर, राइट? तो सेक्टोरियल अप्रोच इज इम्पोर्टेंट. एंड नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि सेक्टर में कैसे सेलेक्ट करूं. सेक्टर को सेलेक्ट करने से पहले there are 2 or 3 informations that you need to have. First of all, what is happening across the मैक्रोस में क्या हो रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया, आई एम थिंकिंग इंडिया एज ए कंट्री, तो इंडिया का मैक्रो कैसा है, राइट? ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ग्रो कर रहा है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रोथ ज्यादा आ सकती है आपका. यू शुड हैव हैंड ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट दो सेक्टर्स की. ठीक है, अगर ग्रो कर रहा है इंडिया, तो ये 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्रो अच्छे कर सकते हैं, राइट? वंस यू गेट टू नो अबाउट दो सेक्टर्स, उसके बाद यू कैन चेक कि भाई ये सब सेक्टर्स से रिलेटेड कंपनीज है कि नहीं, या ये सेक्टर्स में कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं.
मार्केट में, राइट? एंड वंस यू अंडरस्टैंड दो सेक्टर्स कि हाँ, और वंस यू आर कन्विंस इनफ कि ये सेक्टर्स में चाल आएगा बेसिस सर्टेन रीजन, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होएगा. So selecting sector is first step you need to have, or you need to go for before selecting a stock, right? Once you select the right sector, उसके बाद आपको देखना है कि स्टॉक कौन सा लेना है. तो बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग आपने अगर सेलेक्टर स्टॉक सॉरी सेक्टर सही सेलेक्ट कर लिया, तो आपको ये देखना है कि मैं कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करूं, राइट? स्टॉक में दो चीजें हो सकती हैं. अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उसमें बहुत सारे स्टॉक चुन सकते हो कि ये कंपनी अच्छा करेंगी, इन कंपनीज में ये सारे टेलविंड्स हैं. लेकिन आपका अगर एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, आपको सेक्टर की इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वो सेक्टर में जो भी लीडिंग कंपनीज हैं या लीडर्स हैं उनको पिक कर सकते हो. अल्टीमेटली अगर वो सेक्टर ग्रो करना है तो लीडर सबसे पहले ग्रो करेंगे, बाकी कंपनीज ग्रो करें ना करें, राइट? अगेन आई एम सेइंग सेक्टर पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद देखना है कि अगर आपको सेक्टर के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी है तो आप उसमें लीडर प्लस छोटे स्टॉक्स भी चुन सकते हो, इमर्जिंग लीडर टाइप के. लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि यार मैंने सेक्टर तो सही चुन लिया लेकिन मैं इमर्जिंग लीडर नहीं चुन सकता, तो आप जो लीडिंग कंपनीज है उसमें जिनका मार्केट कैप अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, शेयर अच्छा है, वो कंपनीज को सिलेक्ट करो और उन पे दाव खेलो, राइट? तो जैसे एक मैंने अगर मैं बात करूं, 3 महीना पहले एक सेक्टर आपको बताया था सभी लोगों को, एक पॉडकास्ट किया था उसमें कि जो आपका कास्टिंग सेगमेंट है, 3 महीना नहीं, अगर मैं मतलब प्रेसाइसली आई एम सेइंग कि अक्टूबर में हमने बात करी थी कास्टिंग सेगमेंट की, कि जो भी कास्टिंग वाली कंपनीज हैं, फोर्जिंग कास्टिंग, ये सेगमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है और ये सेगमेंट में बहुत सालों बाद चाल आई है. तो आप देखो कि उसमें ज्यादातर कंपनीज ने अच्छा किया है. नेलकास्ट देख लो, स्टील कास्ट देख लो, महिंद्रा सीआई देख लो, मतलब हालांकि महिंद्रा सीआई सिर्फ कास्टिंग कंपनी नहीं है, उसके और भी काम है. तो ये सब कंपनीज ने अच्छा किया और अच्छे यू नो मूव्स दिए हैं. एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ 10 से 30 40 50% तक के मूव्स जो हैं पूरे सेगमेंट में आए हैं. तो इस तरीके से आपको अपने आप को प्लेस करना है वंस यू फाइंड द राइट सेक्टर. तो राइट सेक्टर पाने के लिए यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट द मैक्रोस ऑफ द कंट्री, कि उसके मैक्रोस में क्या चल रहा है और कौन से ऐसे सेगमेंट हैं. जैसे हमारे पास एक फोरकास्ट आता ना है, मतलब कि जीडीपी इतना ग्रो करेगा. आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जीडीपी अगर ग्रो कर रहा है तो कौन से ऐसे सेगमेंट्स है या सेक्टर्स है जो उसमें लीड करेगा. तो फॉर एन एग्जांपल 6% अगर हमारे जीडीपी की ग्रोथ एक प्रोजेक्टेड आता है हमारे पास कि दिस इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ, you need to know कि 6% में देयर वुड बी सम सेक्टर्स जो 10 12 15% ग्रो करें, देयर वुड बी सम सेक्टर्स जो 5 6% ग्रो, एंड देयर वुड बी सम सेक्टर्स जो हो सकता है 1 2% ग्रो करें. यू नीड टू आइडेंटिफाई 10% से ऊपर वाले सेगमेंट्स कि यार कुछ भी हो 6% ग्रो करेंगे तो सब सेक्टर्स बराबर ग्रो नहीं करेंगे, पर ये सेक्टर्स हैं जो 10% से ज्यादा हमको ग्रोथ देंगे, उनमें आपको दाव लगाने का है. ओ टू वेग. ओके, सो गाइस, अगर आपको सही स्टॉक पिक करना है सो फॉलो द सेक्टोरियल मेथड. Okay. Okay. So Praveen, I have been following your work, for some time. आप मार्केट साइकोलॉजी के बारे में काफी डिटेल्ड में, ट्वीट करते हो और आपके जो कंटेंट है उस बारे में बात करते हैं. So what I understand from you, I mean, what I have learned personally from you is that market psychology acts like a catalyst. So I would love to hear your understanding of that, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि market timing should be based upon maths, कुछ लोग बोलते हैं it's about psychology. So what's your take on that? What is my take on that is you are talking about the psychology, na? Yes. Yes. So psychologically, I would say why it is catalyst, because there are a lot of people, maybe lot of people who have very good understanding of fundamentals. So काफी लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं, आपके सर्कल में भी होते हैं जिनका सीए जो लोग करते हैं या फाइनेंस का जिनका स्टडी रहता है, उनका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा रहता है कि शायद आपसे और मेरे से अच्छा रहता हो, राइट? नंबर वन. नंबर टू, there are a lot of people who have very good hold of technical analysis.
ऐसे ऐसे काफी लोग हैं जिनका टेक्निकल एनालिसिस बड़ा अच्छा होता है, बट ये सब लोगों को अगर मैं ब्लेंड कर दूं, पीपल विथ गुड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकली देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आपने फंडामेंटली एक कंपनी को अच्छे से स्टडी किया और उसको बाय भी किया, लेकिन आपने उसको होल्ड नहीं कर पाए, राइट? मार्केट में वॉलेटिलिटी आया या फॉल आया, राइस आया, कुछ आया, आपको लगा कि यार मेरे को ऐसा निकल जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरे को यहाँ पे लॉस हो जाए, या लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट कर गए, या छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो आप एग्जिट करिए। सो दिस इज द कॉमन टेंडेंसी जिसके थ्रू लोग जाते हैं। रीजन मी आई ऑलवेज से कि साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजिकली माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट? एंड ये होता रहेगा, मतलब मैं आपको सही बताऊं तो विवेक, ये आने वाले 10 साल में भी होता रहेगा। जितने भी नए प्लेयर्स आएंगे उनको ये डिफिकल्टी आनी है, और इवन 5-5 6 6 साल जो लोग मार्केट में हैं उनको भी ये डिफिकल्टी आ रही है और आती रहेगी, अनटिल अनलेस अपनी मिस्टेक्स को कम ना करें। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल ये है कि आप अपनी मेंटल स्किल्स को डेवलप करिए, राइट? या आप अपनी जो जो भी आप स्टडी कर रहे हो, टेक्निकल या फंडामेंटल, वो इतने अच्छे से करिए कि आप उस पर स्टिक रहिए एटलीस्ट। मतलब आपने जो भी स्टडी करी है उसका एक एक रूल बनाओ, या कुछ भी एक व्यू बनाओ, ऐसा बनाओ कि यार आपको ना, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो आते हैं मार्केट के, कि विक्स बढ़ गई, कभी डाउ गिर गया, ये वो गिर गया, उससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर मैं एग्जांपल देखूं, पिछले 6 महीने में डाउ 10 बार गिरा होगा, 15 बार गिरा होगा, और 15 बार बढ़ा भी होगा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 10 बार गिरी होंगी लेकिन 20 बार बढ़ी होंगी, और ऑल इन ऑल 50%, ये कह सकते हो कि 60% या हो सकता है 100% रिटर्न पे बैठी हो, राइट? सो हमारा डाउ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डाउ को वॉच किया और उन्हें पोर्टफोलियो को उससे लिंक किया अननेसेसरली। मतलब मैं एक कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ। लोग निफ्टी को या मार्केट का जो मेन इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उससे बिल्कुल वो ट्रीट करते हैं कि अगर मार्केट 3% डाउन हो गया तो मेरा पोर्टफोलियो इतना परसेंट डाउन हो गया तो बस बेच देना चाहिए। वो सब आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि आपकी फंडामेंटल स्टडी अगर इतनी स्ट्रांग है कि ये कंपनी जो है ये साल में इतना ईपीएस तो डिलीवर करेगी करेगी, तो ईपीएस गुणा में पी, जो भी इसको पी मिनिमम मिलेगा, इतना भाव तो आएगा। कब आएगा यू कांट प्रिडिक्ट। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो शायद ना आए, लेकिन मार्केट एक बार कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन के मोड में हो तो शायद वो भाव आ जाए, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बाय करते हैं, और सब कुछ मतलब दिमाग में रखते हैं कि ईपीएस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन मार्केट जब गिरता है, तो जब मार्केट गिरता है तो पी गिरती है ऑब्वियसली। ईपीएस तो मतलब जो भी डिस्काउंट कर रहा है मार्केट उतना रहेगा। तो लोगों को लगता है कि यार चलो अभी गिर रहा है तो शायद हो सकता है कि अब बढ़ ना पाए, या मतलब वो माइंड में आ जाता है। मेरा मानना है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपनी स्टडी पे स्टिक रहना जरूरी है। मतलब वट एवर कन्विक्शन यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। मतलब जब तक आपको मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस इफेक्ट ना कर पाए, राइट? या मैं बोलूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस का प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है, राइट? कोई भी आप स्टडी करोगे, टेक्निकल या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, आपको इतने ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगे कि उससे लगेगा कि ये हो जाएगा। या मैं बोलूं डिस्ट्रैक्शंस, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे आपको, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है। अगर आपकी स्टडी सही है, आपको लगता है मेरी स्टडी सही है, स्टॉक का भाव अभी नहीं, 2 महीना 3 महीना में नहीं, लेकिन 6 महीना में शायद मार्केट अभी थोड़ा अंडर वैल्यूड है, लेकिन मार्केट अगर 6 महीना में सही प्लेस होएगा तो ये कंपनी या ये सेगमेंट चलेगा, और मेरा भाव या मतलब जो भी मेरे को रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो आएगा। तो आपको उस पे स्टिक रहना चाहिए, रादर देन कि 1 महीना 2 महीने बाद फॉल आया और आपको एकदम से लगने लगे कि यार अब तो सब कुछ गिरेगा। तो ये मतलब मार्केट में जब भी करेक्शन आता है ना, तो हर लेमन का यही एक थिंकिंग होता है कि अब तो मतलब सब कुछ गिरेगा और मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, तो एक काम कर, यहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है या जो भी हो रहा है उसको बटोर ले, और बिना रिव्यू किए हम लोग अपने स्टॉक को बेच देते हैं। मतलब हम उस कन्विक्शन को भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमने स्टॉक को लिया है, राइट? तो उसको नहीं भूलने का है। आपका जो भी कन्विक्शन है उस पर स्टिक रहने का है, और डिस्ट्रैक्शंस और एक्सटर्नल फोर्सेस की बातें आपको हमेशा मार्केट में रहेंगी। मैं आज की नहीं, मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो ये 10 साल पहले भी थी, और 10 साल के बाद में भी आपका पोर्टफोलियो रहेगा तो उसमें भी आपको ये चीजें माइंड में आती रहेंगी।
आप जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और ये तो एक मतलब एक हो गया। दूसरा ये है कि नेवर एक्सपेक्ट ए पाथ। लोग ना एक बड़ा सोचते हैं कि यार मैंने स्टॉक 100 रुपए पे लिया तो 200 रुपए बड़ा स्मूथली चला जाएगा। वो जो आपने जो भी कैलकुलेशन किया आईपीएस का या टेक्निकल एनालिसिस यूज करी, ऐसा नहीं होएगा। आप जैसा सोचोगे ना कि वो 1 साल में 2 साल में 200 रुपए जाना चाहिए कि ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, वैसा नहीं होएगा। तो आप कोई भी उसमें स्टडी बिल्ड मत करो। आप लोग का ये कन्विक्शन होना चाहिए कि यार इस स्टॉक का भाव आने वाले 1 साल में 2 साल में 200 रुपए बनता है। कब जाएगा आपको भी नहीं पता। पता लगा 3 महीने बाद चल जाए, 6 महीने बाद चल जाए, और पता लगा 1 साल में भी ना जाए, तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है। तो लोग ना बड़ा मतलब उसमें थोड़ा वो ही अप्रोच यूज करते हैं कि यार मैंने सोचा था कि 6 महीने में चला जाएगा, पर ये जा नहीं रहा है, तो उसको सौदे को काट देते हैं। वो सब चीजें नहीं करनी है आपको, राइट? मतलब डोंट थिंक कि मार्केट शुड गो इन अ मैनर व्हाट यू थिंक, राइट? जो आप सोचते हो उस तरीके से मार्केट नहीं चल सकता। मार्केट अपने तरीके से बिहेव करेगा, ये चीज है। तो ये मतलब की थिंग्स हैं जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ, राइट? और आपके पोर्टफोलियो में तीसरी चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो में हर साल 4-5 ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो 10% से लेकर, या बोलूं 5-7% से लेकर 20% डाउन रहेंगे हमेशा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या एक मीडियम टर्म ट्रेडर हो, तो आपके स्टॉक्स मतलब आप उन स्टॉक्स में मतलब ऐसा आपको लगेगा कि यार मैं फंसा हुआ हूँ इसमें। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसके पोर्टफोलियो में 2-4 ऐसे स्टॉक ना निकले जो डाउन हो उसकी कॉस्ट से, या कह सकते हो इसकी कॉस्ट के आसपास। और वो उसको हमेशा ऐसा फील कराएंगे कि यार हमको तो काट दे भाई तू, हम तेरे पोर्टफोलियो में कोई काम के नहीं है, नए स्टॉक ले। पर ऐसा नहीं होता है, हम काट भी देते हैं कई बार, पता लगता है कि 6 महीने बाद वही स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया, ऐसा भी होता है। तो वो सब चीजें नहीं करनी, आपका खुद का कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए उन स्टॉक्स में। प्राइस पे के ऊपर आपको रिएक्शन नहीं देना है कि प्राइस मेरे हिसाब से चले। प्राइस तो मार्केट जो बताएगा, जो चार्ट पे देखेगा वो होना है। कई बार आपको चार्ट पे दिखेगा नहीं, 5-6 महीने तक कंसोलिडेशन चलता रहा और उसके बाद अचानक से उसमें वो आ गया, राइट? तो हर टाइप के स्टॉक्स, जो भी आपके स्टॉक्स में मतलब आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहेंगे, हर स्टॉक्स का अपना एक बिहेवियर रहता है। और हर स्टॉक के बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे हिसाब से चल भी जाते हैं, हम स्टडी करते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं। तो जो नहीं चलते हैं उन पर रिएक्शन आपका स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं चल रहे, इनको बेच दें, राइट? तो वो मतलब ये वो बारीकी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब माइन्यूट थिंग्स विच वी नीड टू थिंक बिफोर सेलिंग और बाइंग ए स्टॉक। ओ टू विवेक। Great, great. I think for our audience, I mean, this one, question must have answered lots and lots of your queries. No matter, like, Praveen ji ने बोला कि no matter आप किस, concepts को follow करते हो, technical हो चाहे fundamental हो, but if you want to, hold the market, I mean, hold your, stocks and investment. So at the end of the day, it's all about, how strong you are in terms of your, basics. Great. Okay, so Praveen, I think you have already answered my next question that was pertaining to, I mean, something similar on this lines, but still, I will ask that question in case, our audience, is interested. So, basis on the, market psychology, आपको क्या लगता है, which is the right time, to enter and exit in the market? देखो, राइट टाइम तो कोई भी हो सकता है, राइट? ट्रेडर हो उसके लिए राइट टाइम, इंट्राडे मतलब ट्रेडर उसके लिए राइट टाइम बहुत सारे होते हैं, और रॉन्ग टाइम भी बहुत सारे होते हैं। मेरा एक ही चीज है, आप अपने राइट टाइम को और राइट मतलब एंटर एग्जिट को किसी से कंपेयर मत करो। कई बार क्या लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा टॉप पे एग्जिट करूं और बॉटम पे बाय करूं। हर बंदे की थिंकिंग होती है विवेक, हर बंदे की, कि मैं मेरे को वहां पे मतलब एक प्रकार से वहां पे मतलब अलग ही वो एक मेडल लेना है, या मतलब एक हो सकता है ना कि मैं चाहता हूँ, ट्रेडर की एक चाहत होती है या एक इन्वेस्टर की चाहत होती है कि मैं पीक पे सेल कर दूं, और जब डाउन हो बॉटम हो तो वहां पे बाय कर लूं। मेरा मानना ये है कि विवेक, आपका सब लोगों का ये इच्छा जो है ना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आप ये सोचो मत कि मेरे को पीक पे लेना है, पीक पे बेचना है और बॉटम पे लेना है। आप ये सोचो कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या बोलता है।
आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बोलता है कि हाँ भाई, इस भाव पे मैं ले सकता हूँ और मेरा ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड मेरे को मिलेगा, राइट। अगर मेरा रिस्क पहले आता है तो मैं रिस्क को बेयर करूंगा, और मेरा रिवॉर्ड पहले आता है तो मैं रिवॉर्ड को बुक करूंगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर मैं ट्रेडर की बात करूं, सेम इन्वेस्टर का होता है। लोग ज्यादातर यहाँ पे क्या सोचते हैं पता है, कि मेरी एंट्री एंट्री और एग्जिट परफेक्ट हो जाए। और मैं आपको सही बताऊं, 10 में से 10 स्टॉक आपने खरीदे, उसमें से दो पांच तीन चार स्टॉक अगर आपकी एंट्री एग्जिट परफेक्ट हो जाती है ना, तो एक डिलेमा बन जाती है लोगों की कि यार तेरी एंट्री एग्जिट बड़ी परफेक्ट है। मतलब मतलब तूने मार्केट का जो पल्स है ना उसको पता कर लिया है। सर ऐसा कभी मत सोचना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ी हार्मफुल थिंकिंग है जो आपको रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है, राइट। तो आप ये सोचिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे एंट्री एग्जिट करिए रादर देन टॉप बॉटम फाइंड करने के लिए। लोग हमेशा देखते हैं कि ये टॉप बन गया, चल बेच दे, यहाँ पे ये बॉटम बन रही है, यहाँ पे खरीद ले, यू आर राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कहीं पे आप खरीद रहे हो, आपको लग रहा है बॉटम बन रही है, वहां से मार्केट बाउंस कर गया तो आपको लगता है यार तूने बॉटम पकड़ ली। कई बार ऐसा होता है कि आपने टॉप पे बेच दिया और वहां से मार्केट गिर गया, आपको लगता है अरे तूने टॉप पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, और ये हर बंदे के साथ होता है। और जब जब होता है, हर बंदे को लगता है कि यार तूने मतलब मार्केट को समझ लिया भाई, तेरी यहाँ पे पकड़ होगी, तेरी सेटिंग होगी मार्केट के साथ। ऐसा कुछ नहीं सर। ये वो थिंकिंग है जो बंदे को मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 100 150 लोग, ये वो थिंकिंग है जो लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि भाई आप किंग बन गए हो या आपको समझ में आ गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आपके साथ आप, अगर आप ट्रेडर हो ना, आप आने वाले 10 साल में 1000 स्टॉक्स को लेओगे, या हो सकता है 2000 4000 ट्रेड्स घुमाओगे। उनमें से बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होंगी जो आप बेचोगे और मार्केट स्टॉक गिर जाएगा, राइट, और आप खरीदोगे स्टॉक बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स भी होंगी जहां पे आप खरीदोगे और स्टॉक गिर जाएगा, और बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होंगी जहां पे आप बेचोगे स्टॉक चल जाएगा, ये भी होंगी। तो हम उन चीजों को नहीं देखते हैं। मतलब यही सबसे बड़ी एक साइकोलॉजी है कि आपने स्टॉक बेचा और स्टॉक वहां से चलना शुरू हो गया, और आपने स्टॉक खरीदा और वहां से गिरना शुरू हो गया। हम उनको अंडररेट कर देते हैं, किसके मतलब किसके मुकाबले, कि हमने स्टॉक लिया और चलना शुरू हो गया, राइट। तो साइकोलॉजिकली मेरे को मानना मतलब मेरा मानना ये है कि नो बडी इज किंग हेयर। आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, रिस्क और रिवॉर्ड पे, राइट। या तो रिस्क आपको लेना पड़, मतलब रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस करना है कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20 30 हजार पे खोऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे 50 से 70 हजार रुपए कमाऊंगा इस पीरियड में, राइट। तो 20 30 हजार आपको अगर खोना है तो हो सकता है कि आपको स्टॉक में, अगर आप गलत निकले, तो 20 30 हजार खोना पड़े, बेसिस टेक्नो फंडा अंडरस्टैंडिंग कि उसने कोई की लेवल तोड़ दिया और आपको 20 30% वहां पे खोना पड़े। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हो सकता है कि वहां पे आपको ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 60 से 70% आपका रिवार्ड भी आ जाए। तो 10 स्टॉक लोगे, 10 स्टॉक में ये होना चाहिए कि 5 स्टॉक में आपका रिवॉर्ड आना चाहिए, रिस्क ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 2 3 स्टॉक में रिस्क ब्रेक भी हो जाए तो चलेगा, ये चीज है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मतलब इसको ज्यादा तवज्जो दीजिए कि मेरा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना मिलेगा, रादर देन कि मैं परफेक्ट एंट्री एग्जिट कर लूं और मेरा काम चलता रहे। वो होगा नहीं। वो मतलब बुल मार्केट में होता है, जब बुल मार्केट की पीक बनती है ना, उसके लास्ट का जो फेस होता है, उसमें 90% लोगों की एंट्री एग्जिट बड़ी सही होती है, टू बी वेरी फ्रैंक। और इस चीज को आप भी वैलिडेट करोगे विवेक, जब यूफोरिया होता है ना मार्केट में, तो 90% लोग जो भी खरीदते हैं सब चल पड़ता है, तो सबको लगता है कि यार तू जो खरीद रहा है वो चल रहा है। ऐसा नहीं है, और तू जो बेच रहा है वो गिर रहा है, राइट। तो वो सब चीजों को हमने कभी मतलब माइंड में लेने का नहीं है। हमको एक ही चीज को सोचना है कि आप कोई भी सौदा ले रहे हो किसी भी टाइम पे, अगर सपोज करो बुल मार्केट है तो आपका रिस्क कितना है, अगर बियर मार्केट है तो आपको ये देखना है कि यार गिर गया मार्केट, यहाँ से और कितना स्टॉक गिर जाएगा, और नहीं गिरा मतलब लेट्स से यहाँ से और 10 से 20% गिर जाएगा, लेकिन बढ़ कितना सकता है, तो वो आपको देखना है। रिस्क रिवॉर्ड को तवज्जो दीजिए रादर देन एंट्री एग्जिट को देने के बजाय। ये मेरा एक सिंपल सा वो है। All right, guys. So stop, worrying about enter and exit point and start focusing on, risk versus reward. I think that is the biggest takeaway for our audience. Uh,
Okay, so guys, few of you are requesting, questions like you already mentioned. Suman, I appreciate your interest. I know, you must be having some burning questions. So do I. But हमारा ये session, ये podcast smooth चले. That is why we have kept a separate round of Q&A, which will be there. अब मैं अपना खुद का question भी hold कर रहा हूँ. I'll be asking with Praveen at the last. So I request the same for all of you. Okay. So I think you have burst a very big myth of this mindset entry exit ka Praveen. So next question is about the market rumors. Usually हमें बहुत सारे rumors देखने को मिलते हैं stock and trading market में. So what is the ideal way आपके हिसाब से to distinguish between what is right and what is wrong? So could you elaborate, Vivek? Yeah. So my question is about the market rumors. क्योंकि बहुत सारी न्यूज आती हैं आजकल which are most of the time rumors, they are not the actual news. So how to, I mean, what is the ideal way according to you to distinguish between the right and wrong? Yeah. Got it, got it. So सबसे आइडियल वे यहाँ पे क्या है, मतलब द बेस्ट वे इज टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द रूमर्स, राइट? बिकॉज अगर मतलब एक आप लेमन चीज आपसे पूछता हूँ विवेक, अगर आपको चाहिए कि मेरे को हर दिन न्यूज देखनी है, आपको 10 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जहां पे एनएससी में या बीसी में कोई ना कोई फीलिंग मिलेगी। कोई बायबैक कर रहा होगा हर दिन, कोई किसी का कुछ फंड रेजिंग का प्रोग्राम होगा, कहीं पे कुछ प्लांट ऑपरेशनल हो गया होगा, कहीं पे कुछ दिक्कत आ गई होगी, मतलब एवरी डे देयर वुड बी एटलीस्ट 4-5 फीलिंग्स। होता है कि नहीं होता है? और नहीं यकीन है तो आप मतलब बिजनेस चैनल्स को देखिए ना, आपको हर दिन होता है ना स्टॉक इन न्यूज का एक कॉलम आता है, सबको पता लग जाता है कि अच्छा ये स्टॉक्स न्यूज पे हैं। तो देखो बॉस, न्यूज तो हर दिन रहेगी, यू कांट स्टॉप दैट। मतलब एटलीस्ट 5 स्टॉक, मतलब वी हैव 6-7 thousand स्टॉक्स इन द मार्केट, 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो आप ये मान के चलिए 7,000 कंपनीज अगर हैं हमारी, तो 1% भी नहीं, मैं बोलूं आधा परसेंट कंपनीज में न्यूज रहेगा, या आधा परसेंट भी नहीं, 0.3% या मतलब 15 से 20 कंपनीज में कोई ना कोई न्यूज रहेगा, जिसमें से जो बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, उनका न्यूज आपको टीवी पे हर दिन मिलेगा, राइट? ये चीज देखते हो कि नहीं देखते हो आप विवेक? आपने देखा होगा, आई एम श्योर सब लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एवरी डे, है ना? yeah. तो न्यूज तो हर दिन रहता है। अभी वो न्यूज मतलब र्यूमर है या एक्चुअल न्यूज है, तो ये आपको तब देखना है जब आप जिस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो या आप जिस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, उस पे उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उससे, उस न्यूज से, उस डेवलपमेंट से वो कंपनी पे या उस सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आपको एनालाइज करना है। तो मेरा तरीका सिंपल है, हर दिन न्यूज आती है, मैं उसको वॉच ही नहीं करता हूँ। मैं एक उसमें ना, मतलब कहते हैं ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग, वन इज स्किमिंग एंड वन इज स्कैनिंग। स्किमिंग मीन्स आप एक टॉपिक देख रहे हो या आप नंबर ऑफ स्टॉक देख रहे हो कि अच्छा इन 10 स्टॉक्स में न्यूज है या इन 2 सेक्टर में न्यूज है। स्कैनिंग मीन्स कि आपने देखा अच्छा यार ये डिफेंस सेक्टर तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो डिफेंस सेक्टर का क्या न्यूज है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये डिसीजन लिया कि वो लोग इतना पैसा खर्च करेंगे, चलो यार इस बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट में ट्रैक कर रहा हूँ, इसके स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इसके बारे में और जानता हूँ कि ये अनाउंसमेंट की वजह से या ये डेवलपमेंट की वजह से वो पूरे सेगमेंट में क्या फर्क आएगा, या जो मैं कंपनी होल्ड कर रहा हूँ उनपे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आपको अपने मतलब की न्यूज ढूंढनी है उनमें से, और बाकी न्यूज अवॉइड करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10 स्टॉक में न्यूज देख लेंगे, इसमें ये न्यूज है, ये न्यूज है, 10 में से 3-4 स्टॉक देखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो पॉजिटिव न्यूज है, और वो फिर उसमें ट्रेड लेने को बैठ जाते हैं, राइट? ट्रेड लेते भी हैं, कई बार फंस जाते हैं, कई बार पैसा बन जाता है, कई बार बहुत ज्यादा फंस जाता है, ऐसा भी होता है, पप एंड डब भी होता है। आपको र्यूमर्स और न्यूज में दोनों में फर्क नजर आना है। कई बार र्यूमर्स भी होता है, र्यूमर्स क्या होता है कि एकदम से आ गया कि ये कंपनी ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही है, या मतलब जहां पे इफ आ गया हो, इफ याद रखना, मतलब एक इंग्लिश में वर्ड है इफ, जहां पे हो कि ये होगा तो ये होगा, या वी आर थिंकिंग कि हम ऐसा करें, वी आर प्लानिंग, जहां पे ये सब शब्द आ जाए वो र्यूमर ही होगी। उसको मतलब जब तक सच मत मानिए, जब तक वो हो जाए। जहां पे बोल दिया जाए कि ये हो गया है, या ये चीज स्टार्ट हो गई है, या ये चीज सर्टेन है, मतलब जहां पे सर्टेनिटी हो ना, उसी न्यूज को फॉलो करिए। और
फॉलो भी तब करिए जब आपको लगे कि यार मेरे मतलब की है, या मैं सेक्टर को जो ट्रैक कर रहा हूँ वहां से रिलेटेड है। अगर आप उस चीज को ट्रैक ही नहीं कर रहे हो तो एक इंफॉर्मेशनली आप रीड कर सकते हो, कभी कभी काम आ जाए नहीं आ जाए, रादर देन कि भाई चलो ट्रेड ले लिया, तो वो चीज अवॉइड करनी है। तो र्यूमर्स वो होंगी जहां पे सर्टेनिटी जो है वो कम होगी, जहां पे ये होगा कि ये हो सकता है, ये आज मीटिंग होगी, उसमें जैसे जीएसटी का आता है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और ये फैसला ले सकती है, तो भाई उसकी मीटिंग होने दो, पहले लेने दो, उसके बाद आप सोचो ना। तो वो चीज है। तो आप सर्टेनिटी का वेट करिए, जो चीजें सर्टन हो, जो फाइनलाइज हो जाए डिसीजन या न्यूज, उस पे एक्शन करिए, रादर देन जो होने वाला है या हो सकता है या होगा, वो चीज पे नहीं जाना। ये चीज है। तो इसको मतलब मेरा सिंपल रिप्लाई यही है इसका। यस विवेक। Okay. So Praveen, you mentioned about the 2022. You know how it was overall. It was good, and now we are coming to the end of this year. So I'm sure our audience wants to know about your outlook towards the next year, that is 2023. I mean, कौन से growing sectors होंगे, market psychology क्या होगा? So if you can, help us understand coming year better. यस। तो देखो, सेक्टर्स जो भी रहेंगे वो दो तीन है। एक तो आपका पीएसयू कंपनी रहेंगी स्पेसिफिकली जिसका डोमेस्टिक में ज्यादा एक्सपोजर है। तो ओएमसी में पहले बता चुका हूँ। तो ओएमसी कंपनीज आपके पास हैं कुछ पीएसयूज जो अच्छा कर सकती हैं, कह सकती हैं, जहाँ पे मतलब चैलेंजेस इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, जहाँ पे वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव है, जहाँ पे मतलब रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा आपको मिल सकता है। नंबर वन। तो ये एक सेगमेंट रहेगा पीयूसी स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा हो सकता है फार्मा। फार्मा में अगेन जिन कंपनीज का डोमेस्टिक एक्सपोजर ज्यादा हो, जहाँ पे कंप्लायंस का कोई इश्यू ना हो, वही कंपनीज को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। नंबर थ्री, मेरा मानना ये है कि एक और ऐसा सेगमेंट है जो अच्छा कर सकता है, वो है मीडिया। तो चुनाव आ रहे हैं और काफी ट्रिगर है, तो मीडिया एक ऐसा सेगमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको काफी ऐसे स्टॉक्स मिले जो ठीक ठाक रिटर्न दे दें। ऑल इन ऑल 2023 में H1 में आपको बहुत बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब जनवरी से लेकर जून जुलाई तक, ये वो 6-7 महीने हैं जहां पे शायद मेरे को लगता है जैसे 2022 में वॉलेटिलिटी थी, उससे भी बड़ी वॉलेटिलिटी, या कह सकते हो कि अपस्विंग डाउनस्विंग आपको शायद देखने को मिले बेसिस द ट्रिगर्स। बिकॉज जो फंडामेंटल का अपडेट है ऑन ग्राउंड, वो थोड़ा थोड़ा खराब होते जा रहा है। राइट। मतलब 2022 में जो था वो अलग सिनेरियो था, 23 में शायद अलग हो। राइट। धीरे धीरे आउटलुक जो है, मैं ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, काफी सेगमेंट्स का या सेक्टर्स का धीरे धीरे थोड़ा वीक हो रहा है। और वो जितनी वीकनेस रहेगी उसका रिफ्लेक्शन आपको Q3 की अर्निंग में देखने को मिलेगा, और इवन Q4 में तो और ज्यादा वीक देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा क्वार्टर था पिछले साल। ठीक है। तो उन सब चीज को देखते हुए मेरे को मानना यही है कि 2023 में आई विल स्टिक टू PSUs, फार्मा एंड सेलेक्टिव मीडिया कंपनीज, और केमिकल और एक दो FMCG बोल लो, जहाँ पे मतलब ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जैसे डाबर हो गया या पतंजलि फूड्स हो गया, मतलब वो सब कंपनीज में मैं स्टिक करूंगा। बाकी जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स हैं या ग्रोथ कंपनीज हैं, वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगी एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। तो उन पे ध्यान रखने का है। और अप्रोच रहना ये चाहिए कि एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ा कम रखना, खासकर पहले 6-7 महीने में, कि मैं तो 50% ले लूंगा, मैं तो 60% रिटर्न कमा लूंगा, या मैं तो इतना कर लूंगा। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। 2023 के पहले हाफ में एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न की थोड़ी कम रखना, मतलब थोड़ी, मतलब जितनी भी आपकी रहती है, आपकी अगर 20% रहती है तो शायद उसको 10-12% पे लेके आइए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एल्स क्या होगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, हम लोग कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। राइट। तो वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। सेगमेंट्स में आपको बता दिए। ओ टू विवेक। Great, great. Guys, I think आप सब लोगों ने अपने notes बना लिए होंगे that which sector will be, booming in coming year and which is the right time for investment. Okay. Praveen, now my next question about your community, Move with Momentum.
I think you provide, you share your experience of short and medium term trading, your knowledge using your Techno Funda approach. So if you can, tell all your audience about your community, Move with Momentum. देखो, मूव विथ मोमेंटम के बारे में इतना बोलूंगा विवेक कि इट्स कम्युनिटी जो मोर ऑफ एजुकेशनल इन नेचर ज्यादा है. इट इज नॉट समथिंग जहाँ पे आपको कोई एडवाइस मिले, ऐसा कुछ मिले. आई जनरली शेयर माई ट्रेड्स एंड द रीजन कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा हूँ. और आई जनरली शेयर माई व्यू कि मार्केट कैसा लग रहा है मेरे को, ये कैसा वो हो रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में. और मतलब वट एवर ट्रेड्स आई एम टेकिंग और रीजन व्हाई आई एम टेकिंग, मैं उसमें शेयर करता हूँ. एंड मीन वाइल महीना 2 महीना में आई यूजली आई ट्राई टू कनेक्ट विद द कम्युनिटी एज वेल कि क्या उनके डाउट्स हैं, क्या वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, तो वो सेशंस में मैं करता हूँ. राइट. सो ऑल इन ऑल अगर आप देखो तो मूव विथ मोमेंटम का मकसद 2-3 ही है. पहला कि जो मोमेंटम चल रहा है उसके साथ कैसे चलने का है, या मैं कैसे जा रहा हूँ, तो उसको यू कैन फॉलो. राइट. एक एजुकेशनल पर्पस के रूप में. दूसरा ये है कि उसका रीजन क्या है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको वॉच में रखनी है, वो चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो या कोई और अपडेट हो अपना लोकली नेशनली. राइट. और तीसरा मकसद ये है कि जब भी टाइम मिले तो हम कनेक्ट कर सकें, डाउट्स को जान सकें कि आपके माइंड में क्या साइकोलॉजिकल बैरियर्स रहते हैं जिसको आपको क्लियर करने का है. तो ये मूव विथ मोमेंटम में रहता है. और किसी को भी अगर उसमें साथ चलना है जर्नी में, तो मेरे बायो में उसका लिंक है. दे कैन ज्वाइन मी. राइट. एज सिंपल एज दैट. ओवर टू विवेक. Great. Okay, so I'm sure by now, you must have got a lot of value. मैंने तो अपने notes बना लिए हैं, guys. I've got a very good learning in this session. And now we'll have a quick Q&A round. There were a couple of questions coming, from the viewers. But Praveen, first question, first I will take this opportunity to ask my question, which I always ask with my all the, dear guests, that let's say अगर कोई एक newbie है, who wants to get into trading and investment journey, a guy, somewhere around early 20s. So what would be your advice for, that person? मेरे ख्याल में ये कि देखो, दो चीजें होती हैं विवेक. एक तो होता है एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, एक होता है स्किल्स. तो सबसे पहले उसको अपनी नॉलेज को बढ़ाने का है कि उसको वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानता क्या है, नंबर 1. नंबर 2, उसको ये जानने का है कि उसकी स्किल्स क्या है. मैं हमेशा एक स्किल्स को तवज्जो देता हूँ. तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. मतलब आई एम ए लाइफ कोच. आप मेरे को मतलब बीच बीच में हेल्प करते रहना. अगर आपको ये बताओ विवेक जी, आपको अगर बस चलाना सीखना है, आपको कितने दिन लगेंगे और क्या स्टडी चाहिए उसके लिए आपको? सबसे पहले तो मैं कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहूंगा जहाँ पे ऑलरेडी बस चलाने की ट्रेनिंग मिलती है. वहीं से मुझे उसके डिटेल्स, स्किल और डेवलपमेंट, कोई आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए? नहीं ना? बिल्कुल नहीं. हाँ, तो मतलब अगर आप 10वीं पास भी हो तो भी चलेगा, है ना? और आप एक इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको 5 दिन 6 दिन या 1 महीना में वो बस चलाना सिखा देंगे. गॉट इट? राइट. ट्रू. ठीक है. नाउ आपको ट्रेन का पायलट बनना है या जो लोको पायलट होते हैं वो बनना है, तो आपको वहां पे क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, आप बता सकते हो? आपको स्टडी करना पड़ेगा कि नहीं करना है उसके लिए कुछ? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हाँ, कुछ तो मतलब स्टडी हाँ, तो तो करनी पड़ेगी. इंजीनियरिंग का वहां पे आपको डिग्री होना जरूरी है. राइट. बिल्कुल. प्लस में आपका एक स्किल सेट होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसमें. प्लस में आपका ट्रेनिंग होएगा, तब जाके आप एक पायलट या लोको पायलट बन पाओगे. करेक्ट. ट्रू. राइट. तीसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है प्लेन का, तो आपको एक उससे भी ज्यादा हायर डिग्री चाहिए, प्लस एक प्रोफेशनल कोर्स चाहिए. और उस कोर्स में भी आपको एक अच्छा डिस्टिंक्शन चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो. यस और नो? राइट. और उसके बाद जाके आप वो बन पाओगे और फिर एक वो रहेगा. और तीनों ही चीजों में डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि तीनों चीजों में सबसे आसान है बस का ड्राइवर बनना, लेकिन वहां पे आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है. राइट.
दूसरी चीज जो आसान है, थोड़ा लोको पायलट बनना आसान है कि इंजीनियरिंग डिग्री है और आपने टेस्ट पास किया, आप बन गए। लेकिन कमर्शियल पायलट में आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सैलरी भी हाई रहेगा, राइट, या आपका इनकम भी हाई रहेगा, मैं अगर मतलब एक आसान भाषा में बोलूं, राइट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम लोग अपनी स्किल्स को ना बड़ा अंडररेट करते हैं, राइट, कि ठीक है मतलब इतना समझ में आ गया तो चल जाएगा काम, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स पे इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा कि आपको बड़ा स्किलफुल होना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकल ट्रेडिंग हो या टेक्नो फंडा हो या फंडामेंटल कुछ भी हो। जो भी आप टाइप की ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, इतना अच्छा बनिए कि वो क्लास में कम लोग हों, या पूरे इंडिया में हजारों लोग उसमें आते हो, लाखों लोग नहीं, हजारों लोग उसमें आते हो। इतना काम करिए कि आप एटलीस्ट उस स्किल की वजह से अच्छा पैसा बना पाए, राइट। तो दो ही चीजें, पहला नॉलेज बढ़ाओ, और नॉलेज बढ़ाने के बाद उस अपनी स्किल्स पे काम करो, इतना काम करो कि आपकी वो जो स्किल है ना, एक या दो या तीन स्किल्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो, वो आपको पैसा बना के दे। और उसी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अच्छी बन गई तो आपको पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसी स्किल्स को आप इम्प्रूव करते रहिए, इतना अच्छा करिए कि आप एक्सलेंस लेवल की तरफ बढ़ो स्किल में, राइट। आई एम श्योर कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन विवेक, इस एग्जांपल से। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मेरा ही नहीं, जो भी यहाँ पे बिगनर लेवल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, दे मस्ट हैव गॉट दिस आंसर। हाँ, तो ओके। तीनों तीनों में देखो, तीनों में स्किल ड्राइविंग की है, लेकिन आपका एक्सपर्टाइज, आपका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होना चाहिए। मतलब वेदर यू आर ड्राइविंग अ कार या बस, और यू आर ड्राइविंग अ ट्रेन, और यू आर अ पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, राइट। और अगर फाइटर प्लेन का होना है तो और भी ज्यादा चाहिए वहां पे तो, राइट। तो स्किल्स के ऊपर होता है। फाइटर जो अगर एयरफोर्स में जो भी फाइटर विंग के पायलट होते हैं, सारे लोग थोड़ा बनते हैं, उसके लिए भी स्किल का टेस्ट होता है। मतलब जो लोग एयरफोर्स हैं वो समझते होंगे इस बात को, क्योंकि मैंने तो पूरा देखा हुआ है पूरा प्रोसेस। मतलब हैंडफुल ऑफ द पीपल आर सिलेक्टेड फॉर दैट, कि भाई यही लोग एक हैं जो फाइटर पायलट बन सकते हैं। इनका मतलब कह सकते हो हार्ट का बैलेंस, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, मेडिकली, फिजिकली, मेंटली, बहुत सारी चीजें। और आप इस चीज को सर्च करना तो आपको समझ में आएगा कि स्किल का वैल्यू क्या है। तो स्किल जितनी अच्छी होगी ना आपकी दोस्तों, और नॉलेज जितनी अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप उसको यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में, ये बात याद रखना। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, और नॉलेज के बदौलत आप अपनी स्किल को डेवलप करते रहो, कोई ना कोई स्किल को। स्किल्स कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी, याद रखना, जितनी अच्छी होंगी। हाउ टू विवेक। एब्सोल्युटली गाइस। सो इट्स ऑल अबाउट आप किस स्किल पे काम कर रहे हो और कितना कंसिस्टेंट हो। दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर एनी न्यू और यंग ट्रेडर. Okay, so now, guys, we are coming to the end of this podcast, and your gift is awaiting. I mean, Praveen will disclose the special surprise, but before that, we'll have a quick Q&A round. So, guys, now is your time. अगर आपके कोई भी questions हैं about this, session that we have with our dear Praveen sir, आप पूछ सकते हैं. और if you have any other questions, about trading investment, so feel free to ask. सो गैस, अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, एंड आई विल गिव यू द होस्ट एक्सेस एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. देखो, दो चीजें हैं विवेक, या तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर कर दिया है, राइट, जो शायद लोगों के माइंड में होगा, राइट, इसलिए शायद काफी लोग नहीं कर पा रहे हैं, पूछ पा रहे हैं, राइट। या हो सकता है कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और अभी एक रिक्वेस्ट आई भी है योगेश हाँ, शर्मा जी की। योगेश जी ने एक रिक्वेस्ट किया है. लेट मी गिव हिम एक्सेस. ओके, योगेश जी, आपके पास स्पीकर एक्सेस है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें. इवनिंग सर।
हाँ जी सर, बताइए। सर मैं बिरला सॉफ्ट पे जानना चाह रहा था सर, उसका आगे एक आध महीने में क्या हो सकता है सर उसमें? सर स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं ज्यादा बात नहीं कर जी पाऊंगा, बट आईटी कंपनीज के बारे में बात कर सकता हूँ। आईटी कंपनीज का क्या है, वैल्यूएशन का पूरा स्क्वीज चल जी रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्क्वीज आगे भी चालू रहेगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि आईटी इंडेक्स 40,000 से गिरकर 26,000 पे बॉटम आउट कर गया है। मेरे को सही बताऊं तो मेरे को डाउट है, अभी भी शायद बॉटम आउट नहीं करा है, एक बाउंस था 26,000 से बाउंस करके इंडेक्स 31,000 पे आया है। और वो शायद एक बाउंस, इंटरमीडिएट बाउंस पूरा हो गया है। सेलेक्टिव कंपनीज हो सकता है ठीक ठाक करें, बट ओवरऑल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी भी और कुछ महीने लगेंगे इस सेक्टर को बॉटम आउट होने में ढंग से, राइट। जी तो मतलब पी डिग्रेशन इसमें चलता रहेगा, ईपीएस बढ़ता रहे या घटता रहे। तो आप उन कंपनीज पे फोकस करिए जहाँ पे मतलब सेक्टर का पी घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जिन कंपनीज का, आईटी कंपनीज का पी बढ़ा है पिछले एक साल में, क्योंकि सेक्टर का पी घटा है, जी और जिन कंपनीज का यहाँ पे ईपीएस बढ़ा है, सॉरी, वो कंपनीज पे फोकस करिए। उदाहरण के रूप में एक कंपनी है जो एसएमएस वगैरह भेजती है, सॉरी ओटीपी वगैरह देती है आपको, वो जी कंपनी का यहाँ पे ईपीएस सिग्निफिकेंटली बढ़ा है पिछले एक साल में, बट पी घट गया है क्योंकि सेक्टर का पी घटा है। तो ऐसी कंपनीज पे फोकस करिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, आपको 2 साल में बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। Okay, so we have next question from Biswa Bhushan. Biswa, yes, you can ask your question. जी सर। थोड़ा डिस्कस भी किया था अक्टूबर नवंबर में, जो कि सेल्स बहुत घटी हुई थी, जितना होना चाहिए नहीं हुआ था। आपने बोला था ये सब थोड़ा डिस्कस हुआ था। तो ये एशियन पेंट वगैरह तो वैसे कुछ खास प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो सिरका पेंट एक था जो कि बहुत बढ़ा है। तो ऐसा क्या है, कुछ उसके बारे में बोल सकते? देखो स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्त। मैं ये बोलूंगा पेंट ऐसे सेक्टर, अगर मैं बात करूं, ये इंफ्रा के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जितना ग्रो करेगा उतना पेंट को फायदा होता है। उसके अलावा तो पेंट का इस्तेमाल आता नहीं है कंजप्शन में। तो आप इंफ्रा पे ध्यान रखिए और इसके ग्रोथ पे ध्यान रखिए, राइट। ओवरऑल पेंट स्ट्रक्चर, पेंट स्टॉक की मैं अगर बात करूं तो मैं न्यूट्रल टू बेरिश मैं बोलूंगा आपको। मैं सिक्का पेंट चला होगा, ठीक है, वहां पे कोई डेवलपमेंट हुए होंगे, तो उसका कोई इंफ्रा में अच्छा खासा ऑर्डर गया होगा, या कह सकते हो कि अच्छा बिजनेस हुआ होगा। बट ऑल इन ऑल इंफ्रा अगर अच्छा करेगा तो मीडियम से लॉन्ग, मतलब मीडियम भी नहीं, लॉन्ग टर्म में बुलिश है। मीडियम टर्म में अगर मेरी पर्सनल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बोलूँ तो मैं अभी भी न्यूट्रल हूँ। मतलब मेरा ना तो बेरिश है ना कोई बुलिश व्यू है पूरा, राइट। और पेपर पेपर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोल सकते हैं सर? पेपर ठीक है, पेपर में जो पैकेजिंग में जो कंपनीज है वहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई मतलब जो भी गुड्स बनेंगे वो पैक तो होंगे ना। तो क्राफ्ट पेपर कंपनीज में मैं शायद ज्यादा ध्यान दूंगा रादर देन और बाकी कंपनीज में। मतलब जो कंपनीज पैकेजिंग का मटेरियल बना रही हैं, प्लास्टिक को रिप्लेस कर रही हैं पेपर के थ्रू, वो पे ध्यान दीजिए, वो सही रहेगा सब। गरम कर दो ना गैस पे। थैंक यू सर। ठीक है सर। यस। Hello everyone. Sir, I Yes. have one basic question. Sir, how do we develop this skills of psychology and behavioral aspect of investing or trading, correct? And also, uh, with respect to risk management, correct? Is there any specific kind of courses or what is that? How we can build up your learning curve towards these improving these kind of skills actually? I believe, Which we haven't taught of in the anywhere, correct, in schools and all, correct, how we can right. develop this? So psychology, I guess your experience is the best teacher, right? Which tells you about the
the mistakes, right? So whatever mistakes you are doing, you need to understand why you are doing those mistakes, right? So whenever you commit the mistake, always analyze ki why I have committed that mistake. And I am sure most of the mistakes are costly, have some cost, right? uh, you need to analyze. So whenever you commit any mistake in stock market, you need to understand ki why I have committed that mistake. Which was the emotion which led me to commit that mistake. Number one. So you need to understand with the help of mistakes that which is your weakest and strongest emotion. Once you understand that this is my weakest emotion, you can work on that, right? So to have a better emotional balance in stock market, you need to know which is my weakest emotion and which is my strongest emotion. And if that weakest emotion is troubling you, or causing a drawdown in your portfolio, or that strongest emotion is helping you to grow or not. कई बार ऐसा होता है कि वीकेस्ट मिस्टेक आपको नुकसान करवा रही है, राइट? बट स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टेक कोई फायदा भी नहीं करवा रही है. सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, वीकेस्ट इमोशन आपको नुकसान करवा रही है, बट जो आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसपे यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इमोशन इज नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो, और नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो योर पोर्टफोलियो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल की इमोशनली कि वेयर आई एम स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिस योर मिस्टेक्स. और आपको यू विल गेट टू नो basis your mistakes only कि why I have committed that mistake, whether I am short tempered, or I am very fearful due to certain reason. I generally take entry exit very fast. Why I am taking entry and exit very fast? What is a worry, right? Is it suitable to me or not? So this is something which basis which you can build a strong mental capability. Number two is be with a person, or be in a community where successful people are there. So this is the second remedy you can have, right? Be with the community or the people who are successful in stock market. So because people who has the person who has got the success in stock market can only tell you ki, where you need to improve or where you need to work upon, rather than person who has not yet get a big success in stock market. So these are the two remedies. Okay. Sir, is there any self-learning also we can do, like some kind of books and all, which will help us to develop this? Investopedia is a very good website where you will get to know each and everything about technical fundamental indicators or the terms and all, right? Individually, if you want to have a good psychological mindset, then I would say there are a couple of models which you need to adopt. So there is a theory called transactional analysis, TA. So it's a very costly theory or costly training, you can say, where you'll get to, where in which you'll get an exposure of three kind of emotions, parent or egos, you can say parent ego, child ego, or adult ego. So that is something, so I'll try to make a video on these emotions, and I'm sure basis that video will have a hand on your egos and all, right? So there are a lot of stuff which is available on the YouTube already, but I'll try to share something which is very crisp and helpful for all of you guys. But this in Investopedia is the only site where you can have this information. Psychologically, experience is best thing, right? Which basis which you can correct yourself. Yeah. Sir, well said, sir. Sir, I have one more thought on this. As you know, the correct Nasib Taleb nowadays, he was teaching in the about risk management aspects, correct, and probability concepts and all, correct, in the foreign universities, correct. But is there a way we can do some sort of professional course in this? That way,
these decisions are well informed decision? Do you see any kind of well structured courses which are coming up in Indian So there is no context? course for that. I believe you need to be with the people who are successful, or need to be in the community, or be in the that forum where most of the people are successful, or they are in that journey. They've already tasted the success uh, uh, in stock market, right? So I don't think so. Ki doing any professional course would help you to build that kind of strong mentality, right? So I guess you need to be with that community, right? So three things. First of all, knowledge and skills, as I've already said. Number two is working on your mistakes, which kind of mistakes you're committing, along with your strongest and weakest emotion, understanding of those emotions. And third is be with the right people, or be with the right community, people who can guide you, people who know you, that what kind of individual you are, right? So if I know you, the kind of individual you are, so I can tell you, but I don't know, matlab, because we are interacting for the first time here. So if I know you personally, I can tell you कि where you need to work upon. तो जब तक मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं बता देता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, बट मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप बी इन द कनेक्ट विद द पीपल हु नो यू पर्सनली, राइट? लास्ट थिंग, मतलब थर्ड रेमेडी, नंबर वन, नंबर टू, यू हैव टू डू, और मतलब ईच एंड एवरी वन मतलब हैज टू डू, राइट? कि बिल्डिंग द नॉलेज एंड स्किल, और नोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट इमोशन, ये सारा कुछ. Yes. Thank you for your guidance actually. But I have observed that a lot of the theoretical knowledge also gained when I'm reading it. It will be so exciting and it will be very eye-opening actually. Right. But when it comes to the pressing the buy and sell button, correct? Right. I forget everything actually. So that is something where experience, counts, right? So theory is something which gives you the confidence, but experience is something which gives you the wisdom. What do you need? You need a wisdom to grow rather than confidence, right? Confidence is not enough. You need a wisdom to grow. So wisdom always comes from experience rather than knowledge, right? So you have to go through the experiences, and there is not a single every individual or a person in on the earth who has uh, gone through all the positive experiences, right? You have to go through negative experiences as well, or the, I would say, good and bad experiences, right? So you, once you have that kind of skill and knowledge, you will face bad as well as good experiences. So basis the bad and good experiences, you'll get the wisdom. If I got the bad experiences, I will not repeat my mistake, so that I will not have that same kind of bad experience which I have experienced in last 1 month, let's say, or in my life, right? So just reduce your bad experiences and increase your good experiences basis your skills and understanding, and keep correcting yourself. This is the motto for life and as well as stock market, right? More I can tell you, whenever I'm going to connect personally with people like you and all, right? Once I understand personally, right? Okay. Moving on to the next, हेलो question, Mr. Perfect. Yeah, you can ask your question. मैं फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि ये सेक्टर 2 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और कुछ शेयर्स है या कुछ स्टॉक्स है जो बढ़े जा रहे हैं, सन फार्मा है, सिप्ला है, और कुछ स्टॉक्स है जो कि वो नीचे जाते हैं, डीवी स्लैब है, इप्का लैबोरेटरीज है. तो इस सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो मैं क्लियरिटी जानना चाहता हूँ. इस सेक्टर को सर आप समझिए पहले, राइट, कि ये फार्मा सेक्टर जो है कितना बड़ा है, कौन कौन सी कंपनीज कौन कौन से सेगमेंट पे काम कर रही हैं, और कौन कौन सी कंपनीज का पिछला 10 साल का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहा है, या 5 साल का क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहा है, और आने वाले 5 से 7 साल में वो कंपनीज के क्या प्लान है, नंबर वन. नंबर टू, मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग यही है
कि जिन कंपनीज का जो डोमेस्टिक एक्सपोजर ज्यादा हो, राइट, मतलब जो डोमेस्टिकली ज्यादा फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट्स पे ना हो, मतलब एटलीस्ट 60-70% बिजनेस उनका इंडिया से हो रहा हो, उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए रादर देन जिन कंपनीज का 60-70% बिजनेस बाहर से आता हो। बिकॉज बाहर में क्या हो रहा है कि अभी कंप्लायंस इशू बहुत आ रहा है पिछले 1 साल से या पिछले 6-8 महीना से। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे यूएसएफटीए ने उनको 483 दे दिया है या उनके प्लांट पे आपत्ति जता दी है, तो उनको बिजनेस करने में दिक्कत होएगा, राइट। तो थोड़ा समझिए कितना बड़ा फार्मा सेक्टर है इंडिया में, कितना बड़ा फार्मा सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में, और जो कंपनीज हैं उनका कितना बड़ा एक्सपोजर है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा, उसके बाद डिसीजन आप लीजिए, राइट। आपको गूगल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जैसे आप गूगल में लिखोगे व्हाट इज द साइज ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, सब कुछ आ जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल आर्टिकल रहेंगे, उनको पढ़िए, उनके नोट बनाइए, उसके बाद नोट बनाने के बाद समझिए, और ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि फार्मा सेक्टर है कितना, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे हो सकती है, और फिर कंपनीज के बारे में पढ़िए, उनके नोट बनाइए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट वो मेहनत रंग लेके आएगी दोस्त, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल योर क्वेश्चंस। आई नो कुछ और लोग भी होंगे जिनके क्वेरीज होंगे, वो डायरेक्टली प्रवीण के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सरपास द पॉडकास्ट टाइम बाय 15 minutes and we have other viewers who are waiting for the gift. So Praveen, can we announce the big surprise now? Yes, so surprise is that कि I've recorded a small course of stock market basis, sorry basics, right? तो जो भी basics हैं उसका जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में उसमें रिकॉर्डेड है, एंड फॉर दैट कोर्स आई शेयर द लिंक, या क्लास प्लस भी आपको शेयर कर देगा, एंड विल इंश्योर कि आने वाले कुछ घंटों में आपके साथ वो लिंक जो है वो शेयर हो जाए, और उस लिंक का जो वो वैलिडिटी है वो 24 से 48 घंटे के बीच में रहेगा। तो उस लिंक पे आप जब जाओगे तो 24 से 48 घंटे के बीच में अगर आप उस लिंक पे जाते हो और उस कोर्स को डाउनलोड करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, एंड यू कैन एंजॉय दैट कोर्स एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब सिंपल भाषा में जो भी बेसिक्स हैं, जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि ये क्या चीज होती है, पी क्या होता है, मार्केट क्या होता है, या जो भी है, या ईपीएस का कैसे कनेक्ट करना है, वो सब चीजें तो मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में उसको रिकॉर्ड किया है, और आप उसमें जाके उसको समझ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। उसका लिंक कुछ घंटों में शेयर कर दिया जाएगा। तो दैट इज अ गिफ्ट दैट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर दिस स्पेस एंड फॉर क्लास प्लस। Awesome guys, I am sure जो सर का बेसिक लेवल कोर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे जो लोग हम आज आंसर नहीं कर पाए इस लिमिटेड टाइम में, वो आपको सारे आंसर्स उस वैल्यूबल कोर्स में मिलेंगे। सो ऑन दिस नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रवीण जी. I personally have learned a lot in this small session. I'm sure we'll be in touch, and I'll be inviting you again for the second round of for the podcast. और जो हमारे viewers हैं, जो हमारी audience है, उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा. We saw the kind of huge response we got in terms of the questions. So thank you so much, sir. Thank you, Glass Plus, and thank you all to all the listeners जिन लोगों ने अपना कीमती टाइम यहाँ पे शेयर किया। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से बिफोर क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट, आप जो भी लिंक है उस पर प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, क्या आपने सीखा, प्लीज शेयर इट। एंड शेयरिंग में कोई देयर इज नो नीड ऑफ मनी एंड ऑल, आप एक मैसेज टाइप करके बताइए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या चीजें आपने सीखी इस स्पेस से। लेट्स सी कि क्या क्या लोग बता पाते हैं और क्या क्या लोग लिख पाते हैं। लेट्स सी, आई एम श्योर कि विल हैव गुड फीडबैक्स, so those feedbacks will motivate us to conduct these spaces again. Absolutely great. Okay guys, on this note हम आज का financially laddering up podcast wrap up करते हैं, and again thank you so much Praveen ji for your time, and to all the audience, and we'll be catching up soon for the next episode of financially laddering up. Cheers guys, bye.